ठीक है सर. चलो. Start. Hello everyone and welcome to Medgate Today TV Digital special podcast on World Heart Day. Presented by Medgate Today TV Digital, powered by Advanced Media Group and sponsored by Involution. Today, we are joined by a very renowned cardiologist who is a senior interventional cardiologist at Apollo Hospital, New Delhi, Professor Dr. Vivek Gupta. Hello sir and welcome to Medgate Today TV Digital podcast. My pleasure. Where we are just spreading the awareness regarding how to keep our heart healthy, stronger, and how we can live longer by being healthy. It's all English or Hindi both? English. English. Okay, so heart is very important as we know. Today is World Heart Day, and thank you for inviting me to the Medgate, one of the important channels, and of course all friends. Ji. So I work in Apollo Hospital, Delhi as a senior interventional cardiologist, and I have been here for almost 26-7 years. It's a long time. I mean, the time has flown. Time Yes. flies. Bilkul sir. And I worked earlier in France, Okay. and I was working with Alan Cribier, who was the top cardiologist of the world. And it was just because of God's grace I was selected for a very important fellowship at that time in 96, 99, 97, 98. I was in France. Wow. And from that time onwards I am here. I learned angioplasty, angiography, everything from there. I did my DM and then went there. So it has been a long journey, but the most important part of France was my actual learning with Professor Alan Cribier, and I want to give my tribute to my mentor. Wow. Because there are people in India who would like to still shake hands with Alan Cribier. He's such a big known figure because he's father of TAVI. And TAVI means non-surgical valve implantation. Acha. He did for the first time in 2002. And today also not many people are not able to do this procedure. This is little different from angioplasty. This is for the valve disease. But he did the innovation and did everything. Of course, he was a master of angioplasty also. I'm debating a little because it's always good to remember and give credit to your mentor, and with whom very few people have worked all over the world. And he was the nicest man I ever seen in my career, and he used to like me a lot. He came to my house in Sarita Vihar. Arre wow. It was a very special day, and he came only for 12 hours to New Delhi. He said, "I'm Vivek, I'm here." So I said, "Should I come there to pick you up in the Bessie?" So I took my limousine car. He was very happy to sit in my limousine. "Oh, Vivek, you have got limousine." So I took from the limousine, and he came for a small dinner, and then I dropped to the airport. Okay, coming back to the heart. So today is World Heart Day, and after working in France, I came to India and started working in Apollo Hospital. And one of the very nice hospital. I always say that we are one of the best hospitals with all the services. And of course, scientific work, that's very important. We do all scientific work, and we don't deviate from what science says in the interest of the patient. Yes. Patient interest is the most important. What we are doing today is just to help awareness so that we of course want prevention. Exactly. But always you cannot do prevention completely. Yes. It is impossible because you will have heart attack still prevailing. But why we are talking today is because during last few years, Yes. we have seen a little more surge Yeah. in the happenings of heart attack, and especially Exactly. youth. The younger population is getting more and more affected these days. Heart is very important. Your question was, how important is your heart? It's pity, I would always tell God, that why He made only one heart. When you have two eyes, two kidneys, two lungs, 2 years. two hands, 2 ears, two Two parts of the legs. brain, Yeah. but only single heart. So when I was asking somebody, and the question was being asked, I'm asking myself, I thought that possibly God wanted to keep the death in His hands. Acha. That's why He made only a single heart. Okay, हाँ. मृत्यु हमारे हाथ में है. बिल्कुल. तो भगवान is supreme. So we are having only one heart, and which is working all the time. This is जी. very important. Heart is the organ which works all the time. You're born, you are the fetus, fetal stage. You can see by ultrasound that heart is beating Yes. to keep the fetus alive. Yes. Until the death, it is constantly pumping. What is this automatic system? Yeah. It's very strange and very beautifully made by God. That this system, which keeps on working, your heart is beating, my heart is beating. Everybody, you think the heart is beating. Unfortunately, you can't see it. Yes. But that keeps you alive because heart is supplying the blood to the brain constantly.
When it's beating, blood is going to the brain. Yeah. And brain is the seat of life. Yeah. If there is no supply to the brain, Yes. the patient dies within 3 to 5 minutes. Mm. That is why the importance of CPR. Yeah. Because when there is a cardiac arrest, you want to revive the heart so that brain does not die. Heart can come back. Many times happens that heart comes back within about 10 minutes. Till the time brain is gone. Oh, yeah. And these patients continue to in coma. You remember, I give you an example. Mr. Raju Srivastava, comedy king. Yeah, yeah, yes, yes. He was yes. at my home having dinner with me in Sarita Vihar. And he was my patient also. So I always give example why. So regular checkup is important. So I asked him, all is well? He said, everything's fine. I said, are you taking medicine? Yes, everything's fine. He spent about 3 hours with me, singing songs and everything. He had mild symptom a few days back. His wife told, when you're going to Dr. Vivek Gupta, please get a small checkup done. जी. He avoided. He said, okay, we will do next time. And he was on the treadmill. उन्होंने ignore कर दिया. Ignore किया उन्होंने. And he was on the treadmill after 48 hours doing in South Ex. He had a cardiac arrest. And the nearest hospital, he was unconscious. So the nearest hospital was the All India Institute of Medical Sciences. He went there. He continued to live. I tell you what example difference brain death and cardiac death. He had a cardiac arrest. CPR given whatever way in the gym by non-professionals, I'm sure, but they still revived the heart, but they could not revive the brain. He continued to live for at least 2-3 months, and then he died. So what happened was, if the heart comes back within 3 minutes, brain will sustain. If the heart comes back after 5 minutes or 7 minutes or 8 minutes, that's what happened with Raju Srivastava. Heart came back. He was alive, but he was in coma, deep coma, and he could not finally be saved. Yes. So what I want to say, heart is always supplying blood. More than 3 minutes stoppage of the heart will lead to a brain injury, which is mostly irreversible. And if you can revive the heart, if the heart stops, if you can revive the heart within 3 minutes, then the brain injury will not be there and the patient will be okay. So that is the importance of immediate CPR when they have cardiac arrest. So heart is important because supplying the brain. Not only brain is supplying the whole body, but this will not happen with kidneys. If you stop the blood to the kidneys, still it can come back even after 30 minutes. But here it doesn't come back. So that is why heart health is important. 50% of the heart attack patient do not reach hospital. 50% all over the world. 50% of the heart attack patients do not reach hospital. The reason is very simple. Because the heart attack can lead to arrhythmia. Then what is heart attack? I'll come back. Heart attack will lead to arrhythmia and cardiac arrest. On the way, sometimes heart failure, patient breathing like anything, requires ventilation, and patient does not reach hospital and patient dies. Those who reach hospital are more lucky than the people who have not reached hospital. Yes. When the patient comes to me and says, oh, I'm so unlucky, I'm on the cath lab table, I'm doing angiography, God has made me, why I got heart attack. I said, you're luckier than those who do not reach hospital. So always say thank you to God that you are still alive. I tell them, you are still alive, you're being treated. So this is one thing. Secondly, I was telling you that what is heart attack? I think that's simple language for the people. That what is heart attack? What is heart attack? Heart attack means it is not a cyber attack. It's not attack by nuclear power. It is a blockage of the coronary artery. Heart is an organ, I told you. It's constantly beating. But what's own beating? It requires strength. So when the artery starts from the heart beating, the blood starts, it goes to the whole body. It goes to brain, it goes to hands. You see what is pulse? This pulse is actually the heartbeat, which is coming from the heart. The blood is coming here to supply the blood. Because this is superficial, we can feel it. We cannot feel the heart. Of course, we need a stethoscope, but you cannot palpate it. Yes. You don't see the pulse here. There's an artery here also. There's an artery here also. There's an artery here. The whole body is being supplied by bifurcating arteries, arterioles, branches coming from the heart. So this is why we see the pulse. Pulse is important. Why? Because this is telling the cardiac activity. Exactly. A lot of people don't know. Pulse is telling you the heart. Exactly. That's why the big doctor comes. And there's one more way to check. Of course, this is the artery supplying to brain.
you can feel it, palpate Yeah. it, but it takes a long time because Yeah. there is no bone. It's the most superficial. Yes, because they. So heart attack means that I told you that this is supplying hand. Similarly, there are arteries like this, which is supplying the heart Yeah. itself. Mhm. So these are known as coronary arteries. Coronary. Yeah. These are the arteries responsible for the heart to continue to work. So this heart attack means blockage Yeah. of those arteries. Oh. So blockage of those arteries will lead to absolute cessation of complete obstruction in the supply of that part of the area which is being supplied by the artery. Yes. For example, I give example. I close it and I think camera is seeing, and this is completely white. Can you Yes. see? Yes. And as soon as I release it, it becomes red. Yes. So this is what. So when I block the artery, there is no supply. It is The almost supply of white. blood is closed. There's no blood is coming. Yeah. So this is what is happening, that in heart attack there is obstruction in the artery of the heart, and that area becomes white. It's not visible. How does it present? It presents like chest pain, sweating, breathlessness, suffocation, feeling of anxiety, feeling of that you are going to die. This is the sense of impending death. These are few symptoms which is heart attack, which is because of the blockage of not this artery, blockage of the artery which is not palpable, which is not visible, which cannot be seen, but Yes. can always be helped. Then you do ECG. So ECG, there's a good system. Then when the blockage of the artery, it will have ischemia of the myocardium. Ischemia means no supply. That will be reflected on the electrocardiogram. So to diagnose heart attack is a symptom. When you go to cardiologist, he will ask what type of pain it is. Is it breaking pain? Is it a large area? You have sweating or nothing? So these are the questions which we ask. Mm. Then we come to know this possibly is cardiac and possibly this is not the cardiac. I tell, okay, 80% of chest pain are not cardiac, I tell you. Yeah. So I'll tell you why. So this ECG, then if ECG is diagnostic, we immediately shift the patient to the cath lab, if the cath lab is available. Hospital, there are various hospitals in the world, in India, Yeah. of course, and we talk of the world also, everywhere the cath lab facility is not available. Okay. Cath lab means you immediately open the artery, do angiography from the wrist or from the groin, put a wire, check it, there's blockage, see the fluoro, there's a large blockage, there's thrombus. Treat it. Then you talk to the family, we are going to open this artery to help the patient revive and survive so that heart does not deteriorate. Because you have to open the artery is blocked. Yes. It's white. Yeah. It's white, that area of the heart. And Exactly. then you open it and then we do angioplasty and stenting. So this is the heart attack I was telling you. That's why heart is so important, that it is keeping you alive. A one kidney loss does not kill you. One appendix does not kill you. Any abdominal pain does not kill you. One lung gone does not kill you. One brain gone also. It will affect your memory, it may help or it may affect your speech, but it will not kill you. But of course, cardiac arrest will kill you. That's why heart is important. Yeah. Very well But- said. Yeah. क्या हो गया? इतना अच्छा सर बोल रहे थे, तुमने रोक दिया. नहीं बोल रहे Okay, हाँ. what is the next? हम स्टार्ट कर रहे हैं. नजर हट जाओ. So heart is important. Yeah. लेकिन लोग कहते हैं ना, रोमांटिक में दिल उसको दे दिया. तो दिल तो अपने पास ही रहता है. तो सर But- देते क्या है फिर? हैं? फिर देते क्या जब दिल हो? देते क्या? Why heart is so many songs in the Bollywood? बिल्कुल. दिल तड़प तड़प के कह रहा है अभी जा, एक भी गाना है. कितने दिल पे गाने, ये सर गाना. कितने सारे गाने हैं. तो वो सब गाने जो बताए जाते हैं वो बस एक मेटाफर के तौर पे यूज किए जाते नहीं हैं. ऐसा होता है, बताते हैं क्या होता है. हार्ट, यू कैन समटाइम फील योर हार्ट. हार्ट धड़का लगता है ना, कई बार मेनी टाइम्स यू आर अफ्रेड, जब सांप आ जाए एकदम आपको लगे हार्ट धड़का, यस. या कुछ आपको डर लगे या कुछ इमोशनल तो प्रॉब्लम वो हो या रेट ऑफ तो उसमें क्या होता है, एक्टोपिक बीट आती है. एक्चुअली नॉर्मली हार्ट चल रहा है यूं कंटिन्यूस, रेगुलर है, ये रेगुलर है, दिस इज रेगुलर. इरेगुलर हुआ वो फील होता है आपको. बिल्कुल तो बिल्कुल. जब आपको कोई लव दिखता है आपको या कोई आपको अफेक्टेड है तो आपकी हार्ट बीट होती है, तो उससे लगता है कि दिल ही सब कुछ है. तो when the love comes first and there are a lot of emotional people, there is always a flicker in the heart. Flicker means a small abnormal activity which is not governed by, it's covered by emotions. That is why most of the romantic songs
R with heart. My heart is beating. कौन सा गाना है वो? My heart is beating. One more thing sir, सब बोलते हैं दिल से मत सोचो दिमाग से सोचो सर, सोचते तो हम दिमाग से, तो ये दिल का नाम कहाँ से आ गया? हाँ, because you see, because of the flicker, they always feel that emotions are related to heart, which is actually not. Emotional part अलग है. Exactly, brain का तो एक separate इसीलिए होता क्या है. दिल से मतलब है कि when you are emotionally involved, उसको कहते हैं दिल से सोचो. Because of flicker, because they feel that emotions lead to something abnormal, and that abnormal beat. I think you must have seen during your, earlier adolescent, when you see something special or some love or something, you have flicker in the Yeah, eye. And that is palpitation, exactly. which is felt as a. उससे लगता है कि this is possibly heart which is doing everything for the emotion and for the love, while brain is doing for your normal activity. Exactly. That's सर इतनी सारी चीजें आपने बता दिया कि हार्ट अटैक कैसे होता है, हमारे हार्ट बीट कैसे चलते हैं, कितने आर्टरीज हैं, क्या ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से ये सब रीजंस होते हैं, तो इन सब के सिम्टम्स क्या हैं जो हम जान सकते हैं? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. शुड आई स्पीक हिंदी और इंग्लिश बोथ? बोथ. अच्छा देखिए, ऐसा होता है कि सारे छाती के दर्द कार्डियक नहीं होते. बिल्कुल. हियर व्हाट इज द कार्डियोलॉजिस्ट माइंड कम्स. हमें सोचना पड़ता है जब पेशेंट सामने बैठा होता है. हम लोग कहते हैं कि हम लोग एग्जाम, जो पेशेंट इज योर बेस्ट एग्जामिनर, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बिकॉज ही इज वाचिंग यू व्हाट यू आर डूइंग. Yeah. एंड द पेशेंट कम्स टू यू टू हैव हिज कॉन्फिडेंस. यू हैव टू बी, ही हैज टू बी फुली कॉन्फिडेंट, तभी वो इलाज कराएगा हमसे. एंड ऑफ कोर्स ही आल्सो नोज कि डॉक्टर को आता है कि नहीं आता है. यू कैन सेंस इट. आजकल लोग गूगल और पढ़ लेते हैं, पहले गूगल नहीं होता था, लेकिन पहले भी. तो छाती के दर्द के 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मैं बताऊंगा वो कार्डियक की तरफ ले जाते हैं. जी. अगर छाती में दर्द बड़े हिस्से में हो रहा हो, बड़े हिस्से में, एटलीस्ट मोर देन ए फिस्ट, मोर देन 5 इंचेस, उस इतने हिस्से में छाती में दर्द हो रहा हो, लगातार हो रहा हो. लगातार मतलब ऐसा नहीं कि आया गया. कई होता है एकदम आया गया फिर चला गया. अगर लगातार हो रहा है 3-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो ये छाती का दर्द हार्ट का हो सकता है. अगर तेज चलने में, वैसे नॉर्मल है, तेज चला, सीढ़ी चढ़ा या बाथरूम में गया, कहते हैं हम डॉक्टर साहब कब नहाते हैं तो हमको एकदम छाती में दर्द होता है. नहाते में ऑफ कोर्स स्ट्रेन योरसेल्फ लिटिल. नहाते में, खाना खाने के 15 मिनट बाद छाती में दर्द शुरू हुआ, साथ में गैस भी बना. ये सिम्टम हार्ट के हो सकते हैं. चलने पे, तेजी चलने पे, एक्सर्शन करने पे, नहाने के बाद, नहाते समय, खाने के बाद अगर किसी को छाती में दर्द हो रहा है और साथ में अगर रेडिएट हो रहा है, अगर हो रहा है, जरूरी नहीं, अगर हो रहा है, तो ये श्योरली मोस्टली टेक्स टू द ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी. अच्छा. जो दर्द होगा ब्लॉकेज की वजह से होगा. अभी ये एंजाइना की बात हो रही है. एंजाइना में और हार्ट अटैक में फर्क होता है. एंजाइना का मतलब होता है पेशेंट की ब्लॉकेज नस में 70% से ज्यादा है, लेकिन 100% नहीं है. मोस्टली 100% नहीं है, लेकिन 70 ज्यादा है. हार्ट की नसों में बहुत ऐसा सिस्टम बनाया भगवान ने कि 30%, 40%, 50%, 60%, 70% ब्लॉकेज होने तक कोई पेन नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती. There are lot of people who must be walking with a 70-60% blockage and he does not have heart attack and he does not have angina. 70% के ऊपर जो ब्लॉकेज होता है वो उसको पेन होता है. तो ये कार्डियक पेन. अगर किसी कौन सा पेन हार्ट का नहीं है जी. आया गया, प्रिकिंग, सुई चुभ रही अक्सर, यहाँ पे सुई चुभ, कभी यहाँ चुभती, कभी यहाँ चुभती, कभी पीठ पे आती है, ये हार्ट का नहीं है. अगर छाती का दर्द सांस लेने से बढ़ रहा है और रिलैक्स होने से कम हो रहा है, ये हार्ट का नहीं है. तो हार्ट के दर्द में आप आया पसीने के साथ, बड़े हिस्से में, घबराहट के साथ, सफोकेशन के साथ, चलने से बढ़े, आराम करने से आराम हो जाए, नहाने में बढ़े, खाना खाने के बाद आए, तो है. पिन ब्रेक आता जाता, दिन भर कॉन्टिन्यूस पेन हो रहा है, 24 घंटे सुबह से रात तक, ऐसा परसों से यहाँ दर्द हो रहा है लगातार, और जिंदा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ये कार्डियक नहीं है, ये मस्कुलर पेन है. तो मस्कुलर पेन mostly are there and people are so frightened, not obsessed I would say, because you know any pain can be cardiac, but these are not 100% surety. Then we do certain test. Yes. अब आप टेस्ट पे आते हैं कि कौन कौन से टेस्ट कंफर्म करते हैं. हम जब श्योर नहीं होते हैं, यार ये कभी लग रहा है कि अंजाना है, कभी लग रहा नहीं लग रहा, तो we do ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वेरी बेसिक टेस्ट, सिंपल 12 lead ECG. उसमें चेंजेस आ गए हैं, इसका मतलब इसको जब छाती दर्द बता रहा है ये हार्ट का है. अगर नहीं आया है तो नहीं आया. दूसरा टेस्ट करते हैं, एक HS हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जो इमीडिएट बताता है विद इन हाफ एन आवर इसको हार्ट का पेन है कि नहीं है. हम ब्लड टेस्ट करते हैं, अस्पताल में होता है मोस्टली,
आप कहीं से भी करा सकते हो। मैंने कहा ये करा लो टेस्ट, ये नेगेटिव आता है, नॉर्मल आता है तो तुम्हारा ये से कैसे टेस्ट ये ब्लड टेस्ट है, सिंपल ब्लड टेस्ट, जैसे आपकी हेमोग्लोबिन होता है, ये सिंपल ब्लड टेस्ट है। इंट्रावीनस ब्लड निकाला, लैब में दिया, एक चेस्ट ड्रॉप आई। ये दो ब्लड टेस्ट है जो ब्लड टेस्ट और ईसीजी से कंफर्म हो जाता है। अगर फिर भी कंफर्म नहीं होता, पेन तो उसको लगातार हो रहा है, 10 दिन से कह रहा आता जाता, तो हम ट्रेडमिल टेस्ट करा लेते हैं, मशीन पे एक्सरसाइज करा के। ट्रेडमिल नॉर्मल है तो इसको लगता है 70% से ऊपर ब्लॉक नहीं है। इको भी करा लेते हैं, इको अल्ट्रासाउंड का हार्ट है जो हार्ट की पंपिंग बताता है। तो ये 4-5 टेस्ट है। लेकिन आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है जो मैं सबको बताऊंगा वो ये है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। हर आदमी को 35 साल या 40 साल के ऊपर, हर महिला को, आजकल महिलाएं भी, आज पहले कहते थे टिल मेंस्ट्रुएशन इज दे गोइंग ऑन, यानी टिल द टाइम ऑफ मेनोपॉज पेशेंट मोस्टली विमेन आर सेफ। ये अब खत्म हो गया है। पहले कहते थे हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, they are preventive for heart. Exactly. So that is mostly gone because mostly the females are also working. They also have equal stress in their lifestyle. They are not. They are also equally participating. तो वो मिथ खत्म हो गया। तो हर महिला को 35 साल के 40 साल के ऊपर एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच हर 5 साल पे करा लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें ट्रेडमिल टेस्ट जो बताएगा, ट्रेडमिल टेस्ट विल टेल यू अ ब्लॉकेज विच इज मोर देन 70%। लेस देन 70%, 50, 50, 50 तीनों में बंद है। ट्रेडमिल विल बी नॉर्मल, ईसीजी विल बी नॉर्मल, इको विल बी नॉर्मल, एचएस ट्रोपाई विल बी नॉर्मल, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। बट दीस 50% ब्लॉकेजेस, फॉर एग्जांपल इस बच्चे को, किसी को भी, these 50% blockages can convert into heart attack, not angina. angina बताया तेज चलने में दर्द हो रहा है या कभी कभी आ रहा है। 50% blockage is more dangerous। किसी वजह से उसको इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, किसी वजह से नॉलेज ज़्यादा रिलीज हुआ, किसी वजह से वो ट्रेडमिल पे गया, ट्रेडमिल एक्सरसाइज करने, जिम पे गया, या किसी वजह से खान पान गड़बड़ हुआ, वो 50% जो कोलेस्ट्रॉल है, जो टीएमटी 2 दिन पहले नॉर्मल था, जो इको में इसको नॉर्मल है, इसका ईसीजी नॉर्मल है, ट्रोपोनिन टेस्ट नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, वहाँ क्लॉट बन जाता है। क्लॉट 50%, क्लॉट मतलब थ्रोम्बस। अब देखो जब चोट लगती है तो खून आता है तो एक खून अपने आप बंद हो जाता है, थोड़ी देर बाद दबाते बंद हो जाता है। क्लॉट मीन थ्रोम्बस। एक बॉडी का सिस्टम है, बॉडी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम, द गॉड हैज मेड अनदर गुड सिस्टम। एज लॉन्ग एज द ब्लड इज इनसाइड देयर इज नो क्लॉट। व्हेन यू गेट एब्रेटेड और कटता है तो वो जैसी ऑक्सीजन के उसमें आता है वैसे वहाँ अपने आप क्लॉट बनने की टेंडेंसी होती है जिससे खून रुक जाए। क्या सिस्टम बनाया है भगवान ने। इनसाइड नो क्लॉट, आउटसाइड इज क्लॉट। वो लेकिन अगर 50% पे वहाँ क्लॉट बन जाए बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो आर्टरी बंद हो जाएगी, 100% हो जाएगी ना। 50% था, कोई दिक्कत नहीं, फ्लो जा रहा है, यानी कि पाइप लाइन है उसके अंदर 50% सकरा है, वहाँ किसी वजह से एकदम पूरा जाम हो जाए तो इट विल लीड टू हार्ट अटैक। सो 50% कैन लीड टू हार्ट अटैक्स एट एनी मोमेंट। इसलिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से अगर 50% ब्लॉकेज है किसी भी नस में, हम दवा शुरू कर देते हैं जो कि क्लॉट बनने को रोकती है। तो ये है प्रिवेंटिव। तो हार्ट इज इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू डू ऑल द टेस्ट रेगुलरली, बट सीटी इज नॉट सो वेल नोन, नंबर 1. It requires some money also, number 2. It is not available everywhere, number 3. And इसमें थोड़ा डाई देनी पड़ती है, इंजेक्शन देना पड़ता है, इसलिए लोग अवेयरनेस भी नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जब से कोविड की बात कई चर्चा हुआ कि कोविड के बाद से क्या हार्ट अटैक बढ़े हैं, तो इसका रीजन मैं कहने सकता, मैं कोविड पे कम से कम आई वॉज ऑन टेलीविजन ऑन मोस्ट ऑफ द बिग चैनल्स ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब 2-3 टाइम्स। तो उसमें ये हमेशा होता है, उसमें हार्ट अटैक बहुत हुए। द कॉज ऑफ डेथ इन कोविड वाज नॉट नोन। इनिशियली लोग सोचा लंग, फिर सोचा न्यूमोनिया, फिर लोगों ने सोचा कि इसकी वजह से हो सकता है हार्ट अटैक हो रहे हैं। कई बार लगा कि हार्ट रुक जाता है, फिर पता लगा पैर में खून का खसखसा जम रहा है। अब सुना होगा कोविड में देयर वर मल्टीपल थिंग्स। तो कोविड के बाद 4-5 साल हो गए। देखिए 19 में आया कोविड, दिसंबर 19 में आया था, 20 में आया पहले वेव। सर पहले लॉकडाउन मार्च में हुआ था, 2020 मार्च 2020 में। I was completely aware, मैंने बहुत काम किया इसमें। 21 में सेकेंड वेव आ गई, जिसमें ऐसे लगा कि सारे अस्पताल भर गए, डेथ पे डेथ, एंड नो बेड्स अवेलेबल। हमको लोग बहुत परेशान। आई वाज एवरी 2, मेरे 2 फोन है, हर समय बजते थे, बेड दे दो, बेड ही नहीं, अपोलो वाज फुल। सो कोविड की जो 5 साल निकले, 2025 आ गया, उस 5 साल में देखा कि हार्ट अटैक बढ़ गए। तो लोग सोचते हैं, कुछ लोग वैक्सीन को कहते हैं। आई वुड नॉट ब्लेम वैक्सीन बिकॉज देयर इज नो प्रूफ। आई वुड से कोविड का जो वायरस ही था ना, वही उसमें स्पाइक प्रोटीन, हार्ट के अंदर कुछ स्पाइक प्रोटीन होती थी,
तो जो क्लॉट जो 50% जमा है वो उसको सरफेस खुरदरा कर देता है, क्लॉट बन जाता है। सो दैट इज पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी विच थिंग। अब उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीटी कोरोनरी एंजियो होना चाहिए। इतनी भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़, जब आजाद हुए थे 40 करोड़ थी, देखिए 100 करोड़ बढ़ गए हम लोग। वी आर प्राउड ऑफ दैट। आई नेवर से our population is an asset. Yeah, exactly. I always tell population is an asset. It is not a burden. We Because you have have more working hands. Exactly. मैं तो सबसे कहता हूँ कि बच्चे 4 होने चाहिए। we have Although more I have working, only 2. we have more working hands. हाँ. We have more minds. More mind to work, but of course you need a big, good government system. They can be utilized. Exactly. Unfortunately, utilization इतना नहीं हो पा रहा है। Use your mind in the तो productive कैसे way. भी प्रोडक्टिव कैसे हो, इतना रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। तो देयर आर डिफरेंट रीजंस, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, बट ऑफ कोर्स मोदी जी इज डूइंग अ गुड जॉब एंड आई थिंक ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक एफर्ट हिमसेल्फ, बट इट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। Yeah. सो कहते हैं ना कि एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने 2047 रखा है एज ए मार्कर, एज ए Vision लैंडलाइन 2047. और डेडलाइन फॉर विकसित भारत। तो विकसित भारत की बात बाद में करेंगे। मैं इंटेलिजेंट बोलता रहता हूँ, इसलिए मुझे बोलने की बना रहता है। तो कमिंग टू द बैक टू द हार्ट, विकसित भारत तब होगा जब हार्ट अटैक रुक जाएंगे। बिल्कुल। उसमें एक चीज और जोड़ देते हैं। विकसित भारत का मतलब क्या होता है? विकसित भारत मतलब कोई बच्चा भूखा ना सोए। विकसित भारत मतलब पेशेंट का, कोई मरीज को पूरी तरह दवाइयाँ मिले। विकसित भारत का मतलब हर जगह अस्पताल अवेलेबल होनी चाहिए। विकसित भारत मतलब गरीब आदमी को भी उतनी स्वास्थ्य की सेवाएं मिले जितने की अमीर को मिलती हैं। विकसित भारत का मतलब यह है कि हर आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। हर आदमी को, 140 करोड़ का पॉपुलेशन में। हमारे गांव में अभी बिजली नहीं है, कई जगह बिजली है, कहीं नहीं। तो विकसित भारत का इन्होंने टारगेट रखा। उसमें एक चीज जोड़ता हूँ, विकसित भारत का मतलब हर आदमी को जिसको हार्ट अटैक हो उसको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी मिले। क्योंकि हमारे आपने सर अभी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की बात करी। बहुत लोग इससे डरते हैं, क्यों डरते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ हार्ट डिजीज इज एंजियोग्राफी, मोस्ट गोल्डन। हम एंजियोग्राफी करते हैं, नॉर्मल निकलती है, वी सो हैप्पी, इट्स रीअश्योर्ड। वो तो कहता है रात भर का शाम को शैंपेन पी लेना और डांस कर लेना। एंजियोग्राफी इज द ओनली, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बात की मैंने, वो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, हम लोग उसको सुपरवाइज करते हैं। देखिए एक एंजियोग्राफी होती है जो कि पैर, हाथ की नस से या पैर की नस से, यू हैव टू रीच टू द हार्ट। यस, यू हैव टू, आई टोल्ड यू दैट हार्ट के सारे ब्रांचेस हैं। बिल्कुल। हम कहीं से पहुंच सकते हैं, जैसे यहाँ से अपोलो पहुंचना कई रोड हो सकती है, हम कहीं से पहुंच। व्हाट वी आर यूजिंग इज फ्यूमरल आर्टरी। फ्यूमरल आर्टरी मतलब होता है कि हार्ट से एओर्टा निकला, एओर्टा नीचे गया और पैर की सप्लाई कर रहा है। हमने बीच में उसको पकड़ा, उस नस को जो ग्रॉइन में है, ग्रॉइन मतलब जान में, उसमें एक ट्यूब डाला पतला सा, एक पंक्चर किया, पेशेंट सीधा रखाया। पेशेंट कॉन्शियस है फुल्ली। मेरा पेशेंट गाना गाता है, मेरे आप यूट्यूब पे देखिएगा, माय पेशेंट इज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड आई एम डूइंग एंजियोग्राफी। ओह वाओ। सो मैंने कहता तुम किशोर कुमार के शौकीन हो या मोहम्मद रफी के या किसके हो? कहता है तुम गाना शुरू कर दो, मैं काम शुरू करता हूँ। तो ही सिंग्स, आई लिसन एंड आई डू। तो उस आर्टरी को हमने पकड़ा मतलब इसको दबाया, उसमें एक छोटा ट्यूब डाला, एक सिस्टम होता है, यू कैन पुट ए स्मॉल वायर। अब सिंस एवरीथिंग इज कनेक्टेड तो वी रीच टू द हार्ट। सब कनेक्शन अंदर ही अंदर है ना। नो पेन, कॉन्शियस। पेशेंट खुद देखा टेलीविजन पे ही हो रहा है, जो फ्लोरोस्कोपी मशीन है वो डाला, वहां पे हमने बाहर से डाई इंजेक्ट करी। डाई का मतलब होता है ब्लड इज नॉट ए रेडियो ओपेक। अगर आप एक्सरे देखते हो तो ब्लड ही देखता है, जबकि पूरा ब्लड भरा हुआ है। एक्सरे बोन दिखती है, एक्सरे देखा आपने? बिल्कुल सर। एक्सरे बोन दिखती है, हार्ट का बीच में दिखता है, बिल्कुल। हवा भी दिख जाती है, लंग्स का ब्लैक बट ब्लड नहीं दिखता। तो ब्लड इज नॉट रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक मतलब जो रेडियो मतलब फ्लोरो, एक्सरे रेडियो एक्टिव मशीन। तो वो हम ऐसी चीज डालते हैं लिक्विड जो देखे रेडियोस, तो वो जाती है अंदर और हमको दिख जाता है काली काली नसें। वो काली आंखें वाला नहीं है। तो ब्लैक कलर की हमको आर्टरीज दिख जाती है। जी। आर्टरी बिल्कुल साफ दिखती है, बिल्कुल, तो ब्लॉक नहीं है। अगर आर्टरी कहीं सुकड़ी हुई है तो ब्लॉकेज है। तो हमको ये एंजियोग्राफी से पता लग जाता है। वही चीज हम हाथ से करते हैं, यहाँ से गया, यहाँ से गया, सब क्लीवन से होते हुए हार्ट में पहुंचा। हार्ट में फायदा ये होता है कि पेशेंट इज वॉकिंग इमीडिएटली। यहाँ थोड़ा सा पेशेंट को रेस्ट 2 घंटे कराते हैं। एंजियोग्राफी कैन बी डन इन 5 मिनट्स। नो पेन, नो एनेस्थीसिया, नो कट। No pain, no anesthesia, no cut, and it is safer than walking on the road. तो आप फिर भी लोग डरते इसलिए हैं, वो सोचते कुछ निकल ना आए डॉक्टर साहब। अरे हमने कहा डॉक्टर थोड़ी निकाल देगा, वो होगा तभी तो निकलेगा। बिल्कुल। थोड़ी की एंजियोग्राफी किया, ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज होगा तो पता लगेगा।
तो ये लेकिन फिर भी एक दिस इज इग्नोरेंस इज ब्लिस। जब तक आपको पता है कि आप ठीक हैं तब तक तो खुश हैं, जहां पता लगा ब्लॉक निकला टेंशन। सही बात है, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल साइकोलॉजी। पीपल डोंट वांट टू नो द डिजीज बिकॉज दे वांट टू रिमेन हैप्पी। कि जहां बीमारी पता लगी दिमाग में टेंशन होगा, तो इलाज कराओ। अरे डॉक्टर साहब अगर एंजियोग्राफी करें तो स्टेंट तो लगाना ही पड़ेगा। हमने कहा जब ब्लॉकेज होगा तभी तो लगाओगे, हम ब्लॉकेज तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। आई टेल टू द पीपल, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, नोबडी वांट्स टू गो इनटू द टेबल, नोबडी वांट्स टू डू एंजियोग्राफी, लेकिन अगर जरूरत है तो करा लीजिए। क्यों? एंजियोग्राफी इज द ओनली लाइफ सेविंग टेस्ट। टेस्ट इज लाइफ सेविंग। अगर बड़ा ब्लॉक निकला और छोड़ दिया आपने, पता ही नहीं आपको, तो आपको रात को हार्ट अटैक हुआ, चले गए। फिर ऊपर से भी एक सिस्टम, थोड़ा भगवान से दो बातें मैं रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो अगली बार 2 हार्ट बनाए, मैं सोच रहा हूँ कुछ करूँ, और दूसरा ये कि ऊपर जाए आदमी, टेलीफोन से बात होती रहे। कम से कम टॉक टू द पीपल, तब इतना डरेगा नहीं आदमी। सर एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, तो मृत्यु से इतना डरेगा नहीं, उसको पता हम देख तो सकते हैं। सर इफ द पर्सन इज प्रैक्टिकल, तो हमारे जन्म से पहले हमारी मृत्यु तय होती है। अगर यही समझ ले अपने दिमाग में, तो कभी उसको डर, मौत का डर ही नहीं। 2-3 बातें बताऊंगा, चलिए लंबा हो रहा है लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है। अब मैं आ गया एंजियोग्राफी में। एंजियोग्राफी अगर नॉर्मल आ गई तो पेशेंट शुड बी सो हैप्पी, ही शुड टेक शैंपेन, डांस। अगर एबनॉर्मल आ भी गई सब, तो भी 40% ब्लॉक है, हम स्टेंट नहीं लगा रहे। आउट ऑफ 100 एंजियोग्राफी ओनली 30 और 20 विल रिक्वायर एंजियोप्लास्टी और बाईपास। मेरा यही क्वेश्चन था, आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया। अच्छा हुआ, वो लिंक्ड क्वेश्चन है, लेकिन हम बताना चाहते हैं क्या पूछ रहे हैं। मैं थोड़ा जानता हूँ ना आप क्या पूछ रहे हैं। तो फिर अगर ब्लॉकेज निकल भी आया, मैंने परसों किया, तो शाम को किया 5 बजे, मुझे शायद आज भी करना है। अभी ब्लॉकेज निकला 95%, उसको बेहोशी आ रही थी, तो चेक कराने आया, मैं फटाफट स्टेंट लगा दिया, ही सेड ओके नो प्रॉब्लम। तो स्टेंट अगेन वी इज एक्सटेंशन ऑफ एंजियोग्राफी, देयर इज नो पेन, नो एनेस्थीसिया, बैलून से खोला, सेम सिस्टम से हमने वायर डाला, एक गुब्बारा डाला। गुब्बारा भी इतना नहीं कि बर्थडे वाला गुब्बारा नहीं है। इट इज अ वेरी स्मॉल 2 मिलीमीटर डायमीटर, 2 मिलीमीटर नॉट सेंटीमीटर डायमीटर का एक छोटा सा एक ट्यूब होता है, जिसके आगे के हिस्से में एक बैलून होता है, जो हम बाहर से इंजेक्ट करके उसको फुला देते हैं। हम डालते हैं डिफ्लेटेड, अंदर जाके इतना इन्फ्लेट कर देते हैं, क्योंकि गुब्बारा बन जाता है। गुब्बारा मतलब एनीथिंग व्हिच कैन बी एक्सपेंडेबल और डिफ्लेटेबल। इन्फ्लेटेबल एंड डिफ्लेटेबल, वही तो गुब्बारा होता है। नो नॉट फ्लेक्सिबल, इन्फ्लेटेबल एंड डिफ्लेटेबल। यानी कि आपने फुलाया और फिर डिफ्लेट कर दिया। तो हमने 20 सेकंड के लिए फुलाया और फिर उसको वो जहां पे ब्लॉक है वहां फुला दिया, तो ब्लॉकेज खुल गया। हाँ। और बड़ा सिंपल समझा रहा हूँ आपको, जहां पे ब्लॉकेज था पाइप के अंदर, वहां पे हमने गुब्बारा डाला, बड़े प्यार से डाला, उसको पता ही लगा। पेशेंट देख रहा है गाना गा रहा है, पेशेंट तब भी गाना गा रहा है। तो हमने फुलाया और फिर से डिफ्लेट कर दिया। गुब्बारा गया था जो बिल्कुल पिचका हुआ, जब पहुंचा सही जगह पे, वहां पे उसको फुलाया, तो सही जगह मतलब जहां ब्लॉकेज है, फुला के उसने रस काम कर दिया, जगह बना दी। जगह बन गया, थोड़ा सा खोलेगा, वापस खींच लिया, फिर डिफ्लेट किया। यानी कि जिस समय फुलाया और फिर डिफ्लेट करके वापस निकाल लिया, फिर वहीं पे स्टेंट लगा दिया। स्टेंट क्या होता है? स्टेंट इज ए हॉलो सिलेंडर। ओके, आप समझते हो ना, जिसने फिजिक्स पढ़ी है, सिलेंडर क्या होता है? जी। हॉलो पाइप, पाइप के अंदर पाइप। तो हार्ट की नसें पाइप ही है ना, ये सब पाइप ही तो है, अंदर पाइप चल रहे हैं, फ्लेक्सिबल है, जो राइट फ्लेक्सिबल है। हमने ये मोड़ दिया तब भी काम चल रहा है। यही क्या भगवान ने सिस्टम बनाया, ये पाइप जो है जो यहाँ से चल रही है हार्ट की, हमने पूरा हाथ मड़ा हुआ है तब भी यहाँ सप्लाई चल रही है। क्या मतलब, कोई जवाब नहीं है। देयर इज नो आंसर टू व्हाट गॉड हैज मेड दिस ह्यूमन बॉडी इज सो कॉम्प्लेक्स। जबकि इतने बैलून ये सब नहीं होते फ्लेक्सिबल, प्लास्टिक इज नॉट दैट फ्लेक्सिबल, यू कैन नॉट हैव रबर इवन फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब हमने वहीं पे स्टेंट गुब्बारे के ऊपर एक हमने सिलेंडर लगाया, सेम गुब्बारा दूसरा होता है, बना बनाया आता है। सिलेंडर मतलब एक स्टेनलेस स्टील का, आजकल कोबाल्ट क्रोमियम के एक पाइप होती है जो हॉलो होती है, वो गुब्बारे के ऊपर पिरोया, रैपिंग, यू अंडरस्टैंड? गुब्बारा उसको रैप कर दिया, इमोजी तो दिखाता लाता, तो रैप कर दिया और हमने फिर उसको डाल दिया। वहां पहुंच गया सही जगह स्टेंट, जहां ब्लॉकेज था। वो स्टेंट जैसे ही पहुंचा, हमने फिर गुब्बारा फुलाया तो गुब्बारा तो फिर डिफ्लेट किया, तो गुब्बारा तो वापस आ गया। स्टेंट वैसे ही बनाया रह गया। पाइप के अंदर पाइप, वी हैव पुट अनदर सिलेंडर इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी, व्हिच इज अ सिलेंडर, इज अ पाइप, and then bring the back the balloon, stent is there,
वो स्टेंट उसको खुला रखेगा। जी जी, ताकि वो पास होते रहे हमारा हाँ, ब्लड पास, जिससे वो नस जो 100% बनती I'm just imagining 90% everything whatever बनती, you are saying. 90% बनती has become 0%, पूरा खुल गया। तो this is the beauty of angioplasty. First angioplasty was done by Dr. Grunzig in 1977. तब प्लेन बैलून एंजियोप्लास्टी होती थी, प्लेन बैलून, नो स्टेंट। स्टेंट आया पहला 1987 में, 87। इज अ गुड फ्रेंड डॉक्टर ग्रुनसिग इज नो मोर, बट सिगवर्ट ये पहला स्टेंट लगाया स्विट्जरलैंड में, लुजान में। मैं जा चुका हूँ वहाँ काम कर, मैं फ्रांस में बहुत काम किया। आई हैव बीन टू यूरोप मोर देन 70 टाइम्स, आई हैव बीन टू यूएसए मोर देन 30 टाइम्स, आई हैव बीन टू सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर अफ्रीका, अफ्रीका नहीं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान 2 टाइम्स। कराची इज ब्यूटीफुल, व्हाट द बीच। हम लोग कराची से तो पाकिस्तान अपना ही तो हिस्सा था, इट वाज आवर हाउस, बिल्कुल बिल्कुल इट्स बीन ब्रोकन अननेसेसरली। चलिए वो पार्टीशन की बात है। Sir has a very fond of speaking at news channels. That's why he's bringing all the Speak for topics hours. at the cardiology thing. हाँ, देखिए काम भी बहुत करता हूँ मैं, जी। बहुत काम हो चुका है मेरा। रिकॉर्ड है 2 मिनट 40 सेकंड की एंजियोग्राफी, 2 मिनट्स 40 सेकंड एंड कंप्लीट एंजियोग्राफी, 6 मिनट 1 स्टेंट, 9 मिनट्स 2 स्टेंट। Wow, So sir. it's a perfection which has made God has made me a good perfect. I बिल्कुल do sir. a lot of good things and I try to do scientific. And we should always I do. don't do anything wrong. I try to be in the interest of the patient. I don't do unnecessary. I don't do extra stents. जो जरूरत है मैं कहता हूँ, हमारे टेक्नीशियंस को मैं सिखाता हूँ, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये मोदी जी का रूल है, मिनिमम गवर्नमेंट Yes. मैक्सिमम गवर्नेंस, Governance. यानी कि कम समय में कम आदमियों के इस्तेमाल करके ज्यादा उपयोगिता बिल्कुल, लाइए। बिल्कुल। मिनिमम तो हम कहते हैं 2 स्टेट लगाओ, तीसरे की जरूरत नहीं है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी रिजल्ट शुड बी Yes. मैक्सिमम, Yes. ऑफ कोर्स विदाउट मेजर यूटिलाइजेशन। तो Exactly. ये ऐसे स्टेट लग जाता है, तो इसलिए हम मरीज से कहते हैं एंजियोग्राफी करा लो भाई साहब, अगर कोई ब्लॉकेज है तो लग पहले जाएगा पता चल स्टेट, जाएगा। नहीं है तो कोई डॉक्टर थोड़ी बना देगा ब्लॉकेज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल आ जाएगी। तो एंजियोग्राफी इज सेफ ऑफ कोर्स इन गुड हॉस्पिटल्स, यू शुड नॉट गो, वी हैव मोर कॉम्प्लिकेशंस इन स्मॉलर हॉस्पिटल्स अनफॉर्चुनेटली, because we have to train I do lot of training programs, I have Indo-European teaching program, I do regular conferences, webinars, and so teaching of doctors is very important. Yes. Teaching of doctors is equally important, rather more important. I tell you are producing, हम तो गवर्नमेंट से कहते हैं you producing so many medical colleges सब कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर को नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्टर को कम से कम इतना पता होना चाहिए कि गलत दवा ना लिखे। बिल्कुल सर, तो ये सब चीजें हैं। तो हार्ट अटैक की बात हो गई, एंजियोग्राफी की बात हो गई, एंजियोप्लास्टी की बात हो गई, सिम्टम्स की बात हो गई सर। सिम्टम्स की बात हो गई, बाईपास की बात रह गई। आजकल बाईपास क्या होता है, बाईपास सर्जरी की जरूरत कम पड़ती है। जी। जब से स्टेंट आया है और जब अच्छे स्टेंट लगाने वाले हैं तो हम लोग कई बार 2 स्टेंट लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 4 भी लगाते हैं। हमारे पेशेंट हैं 9 स्टेंट वाले भी, एक बार 2 लगे, एक बार 3 लगे। इट इज रिकरिंग डिजीज, यू कैनॉट स्टॉप द, जिसको बीमारी है जेनेटिक्स, अगर तो आप कभी एक जगह ब्लॉक, कभी यहाँ से आप जा रहे हैं आगरा, कभी ब्लॉक आया बल्लभगढ़ पे, एक जगह पलवल पे आ गया, यहाँ से गुड़गांव जा रहे हैं, बीच में एक जगह जो रास्ते पड़ते हैं, कभी कालका जी पे आ गया, कभी एम्स के पास आ गया। तो यू कैन हैव, बट यू कैन नॉट पुट स्टेंट एवरीवेयर। यू कैन प्रोफाइलैक्टिक ला सकते, जब ब्लॉक आएगा तभी तो आप खोलोगे, जब ट्रैफिक जाम होगा तभी तो आप करोगे, तो प्रोफाइलैक्सिस नहीं होती इसके अंदर। इसलिए सम टाइम, मल्टीपल टाइम्स यू रिक्वायर एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी कैन बी रिपीटेड umpteens of times, no risk, no problem. Of course your kidneys have to be all right. And सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी बताना चाहता हूँ, इट इज लाइक ए डेंटल ट्रीटमेंट। पैट्रिक सराज एक बहुत बड़े डॉक्टर है हॉलैंड के, कार्डियोलॉजी के, एवरीबडी नोज हिम, जो इंटरवेंशन कर रहे हैं। जी जी जी। उन्होंने कहा एंजियोप्लास्टी इज लाइक ए डेंटल ट्रीटमेंट। टुडे यू डू आरसीटी फॉर दिस, टुमारो यू डू आरसीटी फॉर दिस, टू थर्ड यू, तो यू कैन रिपीट इट। बाईपास सर्जरी में क्या होता है, यू हैव टू ओपन द चेस्ट। अच्छा। जब बहुत ब्लॉकेज ऐसे होते हैं जो हम लोग नहीं खोल सकते, स्टेंट नहीं जाएगा, ऐसी जगह है जहाँ पे इट इज मोर रिस्की टू डू एंजियोप्लास्टी, देन वी सजेस्ट कि बाईपास करा लो। अब बाईपास में क्या होता है, बाईपास में ओपन द चेस्ट, पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है, एनेस्थीसिया डालना पड़ता है पेशेंट को। जब बाईपास करा रहा होता है मैं सोचता हूँ उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी, उसे पता है बेहोश होने जा रहा हूँ, बिल्कुल। उसको बताया जाता है कि ओके थैंक यू, जब तक हेलो किया, बात किया, तो इंजेक्शन किया, सो गया। जी। तो इट इज देन यू पुट ए ट्यूब, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू। बाईपास का क्या मतलब है, जैसे यहाँ से कहीं जाम है तो बाईपास रोड बना दी, वहां पे हम क्या करते हैं, उसी रोड को ठीक करते हैं, यू ओपन द ब्लॉकेज,
एंजियोप्लास्टी से। यहाँ पे बाईपास पैर की नस निकाली और जहाँ ब्लॉक था एओर्टा से लेकर वहाँ आगे, उसके आगे जहाँ ब्लॉक के आगे लगा दिया, तो बाईपास जरूर बना दिया गया। दैट्स व्हाई उन्होंने बाईपास सर्जरी, यू आर बाईपासिंग द ब्लॉकेजेस I got your point, sir. and by angioplasty we bypass the bypass surgery. When you are avoiding bypass by doing angioplasty, that means you are bypassing the bypass surgery. तो ये होता bypass। एक चीज और बताना चाहूँगा, I think the almost questions are finished. Yes. The most important thing which I will tell you, another important thing is other than heart attack, there is a valvular disease. मैं डॉक्टर एलन क्लीवियर का नाम लिया था शुरू में। जी जी आपने लिया था। तो वो तो एंजियोप्लास्टी के मास्टर थे, बट ही वाज अ बिग ब्रेन। उन्होंने नई चीजें की, उन्होंने एक नया माइट्रल कोलेस्ट्रोम बनाया। पहली बार उन्होंने बैलून से एओर्टिक वाल्व खोला 1986 में, दुनिया भर में हीरो हो गए वो। भाई सही बात, जो हम नया काम करता है, हमें 2 दिल बनाना शुरू कर दिया। सर आपको तो कौन नहीं पूछेगा अगर आपने 2 दिल बनाना स्टार्ट कर दिया तो। सर कुछ नहीं, अमेरिका ले गया, ठीक है प्लीज कम टू यूएस। Some will call me, Mr. Gupta, I want you to be in Washington White House. I will So like you to have have a very lunch. good mimicry. I would like to have lunch with you. How you are? You're a fantastic person. You're a big man. I have come to know. So you are a very great mimicry artist. Trump will call me. That's great, sir. That's तो great. ठीक है, वो तो he was a big innovator. तो उन्होंने एक नई चीज और करी, वैल्व को छाती के अंदर जो होता वैल्व में 3 सेंटीमीटर, इट्स अ बिग एरिया, उसको बिना छाती खोले, क्योंकि वाल्व जब हम लोग ओपन हार्ट करते हैं तो वाल्व बदलते हैं। You must have heard of valve replacement. Yes, we have. तो वाल्व में कुछ सिलाई भी करते हैं कि रोकना जी, वहाँ जी, जी। पे सूचर डन बाय सर्जरी। तो उन्होंने एक नया टेक्निक डाली, उसको कहते हैं टावी, ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। टावी, टी फॉर ट्रेन, ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व। उन्होंने एक ऐसा मिनिचराइज्ड वाल्व बनाया जो वाल्व अपने आप खुल जाए और रुक जाए अपने आप, बिना छाती खोले। तो फर्स्ट ही डिड 2002 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल को उन्होंने पहला केस किया 2002। मैं उस समय जब काम करता था तो ही वाज ड्राइविंग, ही वाज अ बिग हीरो, मतलब इवन बिग, आई डू नॉट नेम द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, वुड लाइक टू शेक हैंड्स विद हिम। ही इज अ बिग मैन। आई इनवाइटेड हिम 2008 में विज्ञान भवन मैंने पहले कॉन्फ्रेंस की, शीला दीक्षित वाज द चीफ गेस्ट, शी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। I invited him to 3 conferences. We started an Indo-European program. जब वो आए यहाँ पे कई लोग अपोलो वाले तो बताया नहीं, हल्का घर आए थे, but we should talk about it। सही बात है। जी बिल्कुल। I'm talking technicians. Everybody is crazy. Yes. अब मोदी जी मेरे घर आ जाए, किसी को बताओ नहीं। He was a Modi of cardiology. Yeah. तो उन्होंने ये किया, मैंने भी थोड़े दिन पहले अपोलो में लगाया। It cost a lot of money, but I want to tell you that aortic stenosis, valve stenosis can be treated without open heart. It's a new innovation which has been done by him. Cost is a little high. अभी भी बहुत कम लोग कर पा रहे हैं इसको. It is not like angioplasty, it requires a little more training because you did. But he did for the first time in a patient of 57-year-old, 57 साल का, almost dead, cardiogenic shock, blood pressure of 50, ऊपर वाला 50, shock में patient था. Surgeon ने कहा हम कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा let me try, हमने बार तैयार है. He was looking for a patient. तो इस तरह का हो जो almost dying हो. Well, he was a great example for doing all the practice of his innovation, new thing. बिल्कुल। जिसने पहला एंजियोप्लास्टी की उसकी पूजा करनी चाहिए, जिसने पहला स्टेंट लगाया वो आदमी बड़ा है। हम लोग तो कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल, we are just copying them. हाँ, but of course copying is also not easy. वो हम काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो इनोवेशन था। तो वो कहना एक नया चीज है, ट्रांसकैथेटर टावी। पब्लिक शुड नो दैट आजकल वाल्व रिप्लेसमेंट की जरूरत भी कम पड़ रही है। We can also treat by non-surgical, non-opening of the chest, without opening the chest, without opening the heart, we can put the valve. So it's a new technology. Very nice, sir. आपने तो हमें पूरा कार्डियोलॉजी का हिस्ट्री बता दिया, प्रेजेंट डे बता दिया और आने वाला फ्यूचर तक भी बता दिया। और आपका जो फ्यूचर पब्लिक की तो पब्लिक को नहीं और, पता मुझे और आपका जो विजन है 2 हार्ट का, वो भी आपने बता दिया। अब देखते हैं कि वो पूरा होगा कि नहीं। आप पब्लिक सब लोग और काम करेंगे, कम भी काम कराएंगे। लास्ट आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगी, एक लाइन में अगर आपको इसको खत्म करना चाहे, इस वर्ल्ड हार्ट डे को लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्या अगर उसको गाने के तौर पे बता सके तो हम और अच्छा लगेगा। एक गाना सुनाई दूंगा, सोच रहा हूँ कौन सा सुनाऊंगा, अलग बात है। लेकिन अगर इफ यू वांट टू रियली प्रिवेंट योर हार्ट डिजीज, तो 2 इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए सबको पता है डायबिटीज, जी बिल्कुल, सबको पता है हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, चेकअप कराते रहिए, कंट्रोल करिए। स्मोकिंग सबको पता है कि स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए, धुएं से, पॉल्यूशन से भी हो रहा है। whether it is passive smoking as well. हाँ, पैसिव स्मोकिंग है, पॉल्यूशन से, जैसे कहते हैं दिल्ली के जो आम जनता है उसकी लाइफ 5 साल कम है एज कम्पेयर टू द विलेजर्स। सो इट्स अनफॉर्चुनेट बट है जो। तो मैं सोचता हूँ एक मानसिक तनाव कम करिए। अब तनाव कम नहीं हो सकता,
मुझे पेशेंट वेट कर रहे हैं अपोलो में तो मुझे तनाव है थोड़ा सा, आपका काम है जाना है, ये तनाव छोटा मोटा, बड़ा तनाव नहीं होना चाहिए। बड़े तनाव जो कांस्टेंट आपको प्रेशराइज कर रहे होते हैं, पैसे का, धन का, कंपटीशन का, नौकरी का, तो उसका पैसे बचे कैसे? ये तब बच पाएंगे जब आप भगवान पर विश्वास रखेंगे। देखिए ऐसा है, यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग। आई पर्सनली फील दैट अभी तक जितना मैंने काम किया, जो कि बहुत कुछ किया, हमारे लोग कहते हैं आप बहुत काम कर चुके हैं, आई पर्सनली फील आई हैव नॉट अचीव्ड इवन 25% ऑफ माय टारगेट्स। दिस माय फीलिंग। आई वांट टू वर्क एंड मोर, डू समथिंग मोर फॉर द कंट्री, फॉर द वेलबीइंग ऑफ द मासेस। अब वो अगर भगवान पे विश्वास जी रखेंगे बिल्कुल। तो आपको लगेगा कि भगवान जो दे रहा अच्छा कर रहा है, तो आपका मानसिक तनाव भगवान पे डाल दीजिए। मतलब आपका जो स्ट्रेस है, कह रहे भगवान आप देखो जो करना करो, आप ही पे डाल दिया, अब मैं खुश हूँ, आप स्ट्रेस लो, भगवान स्ट्रेस लेगा, आपके लिए काम करेगा। तो इफ यू स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड, देन यू एटलीस्ट 50% ऑफ योर स्ट्रेस विल गो अवे, नॉट 100%। डेफिनेटली। तो ये मानसिक तनाव कम करने का। दूसरा है कि नींद पूरी लीजिए। आई पर्सनली फील स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजुविनेशन यू गेट, कहते हैं वापस आपके जो वापस आती है एनर्जी। कई लोग नींद पूरी नहीं लेते और वॉक पे चले जाते हैं, दिन भर थके थके रहते हैं। तो अगर आप नींद पूरी लेंगे तो आपको हार्ट के अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। वाह। ये बहुत कम लोग बताते हैं, और मैं सोचता हूँ पर्सनली देयर इज नो मेजर स्टडी। और बाकी रेगुलर दवाई खाइए आप, कुछ दवाइयाँ स्टैटिन्स हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, वो रेगुलर दवाई खाते रहिए आप। तो टेक हेल्प ऑफ फिजिशियंस, दवाई से कतराइए नहीं। एक बात और बताएं, बहुत लोग कहते हैं they feel they are more healthy if they don't take medicines. No, it's not true. There are preventive medicines. I take at least 4 tablets which are preventive every day. For last 10 years or 5 years I'm taking it. तो वो दवाई से कतराइए नहीं। और आखिर में आप एक गाना गाइए तो मैं उसको गा दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप गाएंगे कोई? सर आप ही गाइए, मैं इतने अच्छे एक सिंगर नहीं हूँ, बट आपसे सुनना मैं जरूर पसंद कौन करूंगी। सा गाऊं मैं? किशोर कुमार का। जैसे आप अपने पेशेंट से पूछते हैं कि किसको पसंद करते हैं, वो गाना गाइए। आज हम आपसे पूछेंगे सर आपका फेवरेट सिंगर कौन है और उनका एक गाना गाइए। वेरी गुड क्वेश्चन। फेवरेट सिंगर मेरा किशोर कुमार है, बट इवन मोहम्मद रफी, ये दो ही हम। सर आज दिल का दिन है, तो आज दिल से रिलेटेड कोई गाना हो जाए। हमारी पूरी टीम आपको सुनने के लिए राजी है। तो 2-3 गाने हैं दिल के, तो अभी जो गाया था वो गाता हूँ। जी जी बहुत ही प्यारा गाना है वो। दिल तड़प तड़प के कह रहा है अभी जा तू हमसे। सुना नहीं सुना आपने? जी मैंने सुना है सर, आप गाइए ना। दिल तड़प तड़प के कह रहा है अभी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है अभी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है अभी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है अभी जा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले कि तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गिल नहीं खुले कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है अभी जा। ये बड़ा अरे वाह सर, आपने क्या गाना गाया सर। मुझे लगता है गाना गाना आपका एक शौक है, जिस हिसाब से मैं आपको क्या हुआ, ये भी इसकी 3-4 साल से हो रही। जब कोविड हुआ तो आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ वेबिनार्स। ओके। तो कई म्यूजिक डायरेक्टर हमारे दोस्त हैं, अनु मलिक, आप नाम सुना होगा। जी जी। ऊंची है बिल्डिंग, दिल तेरी बंद है। बिल्कुल सर, कैसे भूल सकते हैं सर। दिलीप सेन, समीर सेन, they used to come. शान, many singers I used to invite webinar। एक वेबिनार में बाकी कार्डियोलॉजिस्ट, एक सिंगर। ये गाना गा रहा है तो मैं भी गा सकता हूँ। तब से मैंने ट्राई किया। तो हमारे दिलीप सेन साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे फैन हो गए सीरियसली। ओह वाओ। दिलीप सेन बिग मैन, 200 पिक्चरों में गाने दिए उन्होंने। तो आपके लिए गाना गाते हैं, उनको लगता है मेरी आवाज उनको बहुत पसंद है। वो कहते हैं आपकी आवाज किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के बीच की है। अच्छा, बीच की है। This is words। कहते हैं हमारे सुपर फ्यूजन ऑफ टू ग्रेट लेजेंडरी किशोर कुमार गाते हैं, राजेश खन्ना का जी। लास्ट है, वो गाना दिल पे नहीं है। ये शाम, शाम हो रही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे
कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए. Thank you very much. Thank you so much sir for coming here. Thank you so much. मतलब ये वर्ल्ड हार्ट डे तो सर आपने एकदम यादगार बना दिया. मैं इसको कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती हूँ. जैसे आप अपने वेबिनार में एक सिंगर रखते थे, आज हमने इतने सारे कार्डियोलॉजिस्ट को यहाँ पे बुलाया है, उसमें से एक सिंगर को भी हमने बुला लिया. बिल्कुल, जो कार्डियोलॉजिस्ट भी है और एक सिंगर भी है. सो थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, इतना सारा अवेयरनेस फैलाने के लिए. और हम चाहते हैं अपने ऑडियंस से कि सर ने जो जो बातें की है प्लीज अपने डेली लाइफ में उसको अवेल करिए और अपने हार्ट को हेल्दी रखिए, स्ट्रॉन्गर बनाइए और बेहतरीन लाइफ जिए. बाकी सर अपने मिशन में बिल्कुल लगे पड़े हैं 2 हार्ट के लिए, बट उससे ज्यादा लोगों ने, बट उससे पहले आप जरूर अपने एक हाथ का ध्यान रखिए, उसको बेहतरीन बनाइए और अच्छे से लाइफ जिए और अपना बेस्ट कीजिए. भगवान पे हरदम भरोसा रखिए. थैंक यू सो मच. भगवान पे विश्वास. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. क्या बात है राहुल, क्या पॉडकास्ट हुआ है सर. मैं तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती सर. हाँ कि